So, good morning to all. Today, our topic is Charaka Samhita Sutrasthana 29th chapter, Dasha Prana Ayadaniyam Adhyaya. So, we are going to discussing about chapter Dasha Prana Ayadaniyam Adhyaya, which is not coming under any one of the Chatuskas. You know, there are 7 Chatuskas. This chapter, 29th chapter, is not coming under any one of the Chatuskas. 29th chapter and 30th chapter. Artedesha Mahamulya Adhyayam. The 29th and 13th chapter are Sangraha Adhyaya of entire Sutrasthana. So, एक chapter से क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं? Very importantly, इस chapter से क्या क्या पढ़ना है? The chapter is dealing with mainly 2 concepts. The first concept is Dasha Prana Ayadaniyam. The name itself indicating Dasha Prana Ayadana. उसके बारे में इस chapter में बता रहा है, बताइए है Dasha Prana Ayadana. And the second thing is description about physician, doctor के बारे में. 2 type of doctor के बारे में करता है. You know, in Sutrasthana, there is another chapter where already we are discussed about physicians. डॉक्टर के बारे में कौन से चैप्टर में हमने ऑलरेडी बताया है? इन फर्स्ट ईयर में हमने तीसरा ऐशणी अध्याय में त्रिविध भिक्षक के बारे में बताया है. वह उस टाइम हमने त्रिविध भिक्षक पढ़ा. देन भुट्टागा चतुष्पाद अध्याय में भिक्षक का गुण के बारे में 4 गुण, प्राण अभिसार भिक्षक के बारे में, राजा अर्ह भिक्षक के बारे में कहा. Here also प्राण अभिसार भिक्षक के बारे में description available in this chapter. So here also 2 type of physicians are told. One is prana abhisara bhikshaka, other one is roga abhisara. So the main and core or cardinal component of the chapter Dasha Prana Ayadaniya is, the first one is Dasha Prana Ayadana, description about Dasha Prana Ayadana. The other one is 2 type of physician. Coming to, so what is Ayadana? Dasha Prana Ayadana. We have 10 seat. Ayadanam. Ayadanam means seat. So prana मतलब life. So प्राण का सीट है. प्राण का सीट के बारे में कहा है. वहां उपखाद हुए हेतु चक्रवाणी, अकॉर्डिंग टू चक्रवाणी, तद उपखादे प्राण उपखादा. वहां उपखाद any type of injury, उपघात, injury, उपघात इस प्लेस में हो गया है तो it will lead to प्राण उपघात. प्राण का उपघात होगा, मतलब आपका लाइफ को उपघात होगा. That is it is called Dasha Prana Ayadanam. प्राण वहां बैठा है. That is Dasha Prana Ayadanam. So मैंने already कहा, this chapter is the Sangraha Adhyaya of Sutrasthana. And the next chapter is Pura next Arthedasha Mahamulyam, 30th chapter, 30 chapter is the संग्रह अध्याय ऑफ सर्वतंत्र. पूरा टेक्स्ट का, पूरा तंत्र का, पूरा आयुर्वेद का एक संग्रह अध्याय करके, मतलब पूरा चैप्टर के बारे में डिस्क्रिप्शन. देखो हमने आयुष्कामी अध्याय में, अष्टांग हृदय आयुष्कामी अध्याय में ईच स्थान में क्या क्या श्लोक चैप्टर आता है, ऐसे एक डिस्क्रिप्शन बताया. At the very end portion of the first chapter आयुष्कामी अध्याय,
that is Ashtanga Hridayam Sutrasthana first chapter, we have a description about the chapters which is coming under each sthana. Likewise, in Charaka Samhita also, 13th chapter is having a description where all the chapter names are mentioned in chapter number 30, 13th chapter. That is Arte Desha Mahamuli Adhyaya. Here in Dasha Pranayadini Adhyaya is known as Sangraha Adhyaya of Sutrasthana. एक कंपाइल करके बताया है सूत्रस्थान को. So already I mentioned there are two main point which is dealing with this chapter. That is, the first one is Dasha Prana Ayadana and the second one is two type of physician, two type of doctor. तीसरे अध्याय में भी हमने डॉक्टर के बारे में कहा, भुट्टाका चतुष्पाद अध्याय में भी हमने डॉक्टर के बारे में कहा है, and in this chapter also we are dealing with the doctor. So first point, Dasha Prana Ayadana. What are Dasha Prana Ayadana? So ये श्लोक आपको बाय हार्ट करना है. अगर ये श्लोक बाय हार्ट नहीं किया है तो क्योंकि इस चैप्टर से कम 2-3 मैक्सिमम 4 श्लोक आपको बाय हार्ट करना है. अगर ये श्लोक बाय हार्ट नहीं किया है तो उसका मैटर बाय हार्ट करना. What is the sloka? Dashaiva Ayadananyahu Prana Yeshu Pradishtita. Dashaiva Ayadana. Only 10 Ayadanam seats where prana is Pradishtitam. Yeshu उसमें प्राण प्रतिष्ठित है, बैठा है. और क्या क्या है? शंगौ. शंगौ द्विवचनम आ गया. क्यों? दो शंग है, दो टेम्पोरल रीजन है. So शंगा रीजन is one among Dasha Prana Ayadana. मर्मत्रयम, त्रिमर्मम ऐसे ही बताया है, सिर्फ त्रिमर्मम ऐसे ही बताया है. तो त्रिमर्मम क्या क्या है? हृदयम, वस्ति, शिरस. त्रिमर्मम, त्रिमर्मीय अध्याय इन चिकित्सा स्थान में त्रिमर्मीय अध्याय है. 26th चैप्टर त्रिमर्मीय, अगेन त्रिमर्मीय सिद्धि बताया है सिद्धि स्थान में. सो मर्मत्रयम, कंडम, थ्रोट, रक्तम, ब्लड, शुक्रम आपको मालूम है, सेमन, ओजस एंड गुदम. सो शंगौ मर्मत्रयम कंडौ रक्तम गुदो शुक्र ओजसी गुदम. अगर फर्स्ट लाइन आपको यही याद रहता है तो सेकंड लाइन में याद कर लो. क्या है? शंगौ मर्मत्रयम कंडौ रक्तम शुक्र ओजसी गुदम. At least try to by heart the two lines. But there is another description in Charaka Samhita, the same Charaka Samhita in Sharirasthana, same Acharya Charaka ने Dasha Pranayadanam 7th chapter में बताया है. शरीर संज्ञा शारीरम में, शरीर संज्ञा शारीर चैप्टर में, चरक शारीरम 7th चैप्टर में, वहां उसने शंगौ, दो शंगों को डिलीट किया, ओमिट किया. देन क्या ऐड किया? मांसम एंड मूर्धा ऐसे ऐड किया. नेक्स्ट अष्टांग हृदय शारीर में आ गया है तो वहां मूर्धा प्लस जिह्वा बंधनम, उसने जिह्वा बंधनम ऐड किया है. जिह्वा बंधन, तो जिह्वा बंधनम एंड मांसम आपको याद रहना है. अष्टांग हृदय शारीर 3rd चैप्टर वहां भी शारीर स्थान में बताया है दश प्राणायाम, पर वहां दश प्राणायाम का अलग ओपिनियन ही बताया है. दश प्राणायाम डिफरेंटली बताया है. शंगम वहां नहीं बताया है. इंस्टेड ऑफ दैट आचार्य वाग्भट ने जिह्वा बंधन एंड मूर्धा एक्सप्लेन किया. So very importantly you have to by heart the two lines. Dashaivayadananyahu pranam yeshu pradishtitaha shangho marmatrayam kandau raktam shukra ojasi budam. Then two type of physicians. One is pranavisara, other one is yogavisara. So pranavisara madra, one who save life and kills disease. Disease को kill करेगा, life को save करेगा तो प्राणाभिसार. तस्माद् शास्त्र अर्थ विज्ञाने प्रवर्तित कर्म दर्शने, ऐसे हमने प्राणाभिसार भिक्षक का गुण पढ़ा है. ऑलरेडी वी आर डील विद प्राणाभिसार भिक्षक इन द 9th चैप्टर. तो हम प्राणाभिसार भिक्षक का डेफिनेशन है इन संहिता अध्ययन फर्स्ट. यहाँ भी प्राणाभिसार भिक्षक अगेन बताया.
Pranavisara Vikshaka is the one who save life and kills disease. So it's इसका opposite है रोगाभिसारम. रोगाभिसार क्या होगा? डिसीज को वर्स करेगा, डिसीज को वर्स करेगा. दैट्स व्हाई इट कैन किल लाइफ, लाइफ किल लाइफ, मतलब मौत का कारण बन जाएगा ऐसे वाला वृक्ष. सो हमने ऐसे वाला वृक्ष के पास गया है तो मौत का कारण बन जाएगा. इसलिए द वेरी एंड पोर्शन ऑफ द सेम चैप्टर, ये चैप्टर के लास्ट पोर्शन में कैसे वाला डॉक्टर स्यूडो फिजिशियन है, फॉल्स फिजिशियन, स्यूडो फिजिशियन, क्वाक, क्वाक, उसको हम क्वाक कहता है. मतलब जो फिजिशियन अच्छा वाला आवश्यक नहीं है, चमत्कारन, ऐसे हमने पढ़ा था ना, वो सेम ऐसे हमें पता चलेगा कि अच्छा वाला डॉक्टर कौन हो, बुरा वाला डॉक्टर. उसके बारे में इस चैप्टर के लास्ट पोर्शन में बताया. सो व्हाट आर द कंटेंट विच इज टेलिंग द सेम चैप्टर? फर्स्ट वन इज दश प्राणायाम, second one is type of physician, and the third one is how to identify whether a doctor is good or bad. That is also dealing with the within the same chapter. तो देखो, what is pranavisara vikshak? Prananam ege avisara. So one type of vikshak क्या करेगा? प्राणानाम एगे अभिसारा, प्राणाभिसार विक्षक है, वो क्या करेगा? अंधारो रोगाणाम, रोग को हंत करेगा, रोग को किल करेगा, विच मीन इनडायरेक्टली सेव लाइफ. तो प्राणानाम एगे अभिसारा अंधारो रोगाणाम, रोग को हंत करेगा, विच मीन सेव लाइफ. एंड तान इंद्रियाणि विज्ञानम चेतना हेतु आमयान जानीवे यह स वै विद्वान प्राणाभिसार उच्यते. ये दो लाइन भी देखो, प्राणानाम एक अभिसारो हंतारो रोगाणाम, यू हैव टू बाय हार्ट. वो श्लोक आपको बाय हार्ट करना ही है. प्राणाभिसार विषय का गुण एक ही लाइन है, वो एक ही लाइन बाय हार्ट करना इजी है. तो यू शुड हैव टू बाय हार्ट दैट श्लोक. एंड द सेकंड लाइन, that is optional only. If you want the rank, good mark, then you have to. What is it is told? तान इंद्रियाणि विज्ञानम, वो व्यक्ति को इंद्रिय के बारे में विज्ञान है, इंद्रिय के बारे में, अपना सेंसरी ऑर्गन के बारे में विज्ञान है, नॉलेज है. चेतना, हियर चेतना अकॉर्डिंग टू चक्रवाणी आत्मा, आत्मा के बारे में नॉलेज है. हेतु आमयाम, आमयम, आमया मीन्स यहाँ नो डिजीज, लिंगम, लक्षण ऑफ डिजीज, डिजीज के लक्षण के बारे में नॉलेज है. हेतु के बारे में, व्याधि जनक हेतु, व्याधि प्रशम हेतु, कौन कौन से कारण से व्याधि होता है. हेतु मीन्स रीजन, कारण, क्या क्या कारण से व्याधि होता है, क्या क्या कारण से व्याधि प्रशम होता है, व्याधि को कम कर सकते हैं, ऐसा वाला हेतु के बारे में नॉलेज. सो हेतु के बारे में नॉलेज, आमय के बारे में नॉलेज, दैट इज लिंग के बारे में नॉलेज, चेतना आत्मा के बारे में नॉलेज, ऐसे वाला जानी दे, ये सभी जानी दे, ये सभी जानने वाला वो विद्वान वाला शिक्षक को, वो विद्वान होगा, समर्थ होगा, वो समर्थ वाला शिक्षक होगा. ऐसे समर्थ वाला विद्वान वाला शिक्षक को हम प्राणाभिसार शिक्षक बोलता है. So this sloga is optional only. Next, again there are lot of description regarding who is a good physician, that is who is a प्राणाभिसार शिक्षक. Again there are lot of descriptions are given. ये क्राइटेरिया हो तो आप अच्छा वाला डॉक्टर हो, मीन्स प्राणाभिसार शिक्षक हो. ऐसे कैसे गुण होना चाहिए उसको, वो क्या होना चाहिए? या इमे कुलीन, वो कुलीन होना चाहिए. ऐसे वाला व्यक्ति कुलीन होना चाहिए, नोबल, बहुत नोबल होना चाहिए, नम्रता, नोबल फैमिली से आने वाला चाहिए, कुलीन वाला व्यक्ति, नोबल फैमिली में बोर्न होना चाहिए. पद्यवदात सुधा, पद्यवदात सुधा मतलब जो शुद्ध है, जो उसने पढ़ा है, अपना साइंस से पढ़ा है, अपना शास्त्र से पढ़ा है, उसमें पद्यवदात भाव, उसमें वेल वर्स्ड होना चाहिए, which means he or who has or having good knowledge regarding the science.
that he had heard from their gurus, from the science, from the textbooks. अपना गुरु से, अपना textbook से, अपना teacher से क्या क्या शुद्ध, क्या क्या मिला है वो अच्छे से पढ़ा हुआ, अच्छे से लर्न हुआ, ग्रास्प किया हुआ व्यक्ति होना चाहिए. परिदृष्ट कर्मणा, दृष्ट कर्म, जो उसने देखा है, that is practical experience. That person is must have practical experience. Daksha, skillful होना चाहिए. शुचि, clean, both internally and externally, mentally and physically. That person should be hygienic. जिता हस्तन, expert hand वाला व्यक्ति, जिता हस्तु वाला व्यक्ति. लघु हस्ता is another term. लघु हस्ता वो आपने सुश्रुत संहिता में पढ़ेगा. सुश्रुत संहिता में 34th चैप्टर सूत्रस्थाना में आपने पढ़ेगा लघु हस्त. जैसे दत्त हस्ता, अमृत हस्ता, ऐसे ऐसे शिक्षक का गुण है. दत्त हस्तन, अमृत हस्तन, वो सभी रसरत्न समुच्चय में बताया. जैसे लघु हस्ता है, जित हस्ता है, अमृत हस्ता है, दत्त हस्ता है, ऐसे 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 टर्मिनोलॉजी यू विल सी during your second year and third year classes. Okay. Next, जिदात्मन. वो जिदात्मन होना चाहिए, सेल्फ कंट्रोल वाला व्यक्ति होना चाहिए. सर्व उपक्रमणवंदम, सर्व उपकरणवंद, उपक्रमण नहीं उपकरण, सर्व उपकरणवंद, सभी इक्विपमेंट्स को अपना साथ होना चाहिए. Whenever necessary for surgery, then there should be that type, that surgical instrument should have with them or with him. Then only he can perform surgery. सर्जरी करने के पहले उसके पास इक्विपमेंट्स नहीं होना है तो कैसे सर्जरी करेगा. तो सर्व उपकरण वो सभी मेडिसिन उसके पास होना चाहिए. सर्व इंद्रिय उपबंधन, अपना सेंसरी ऑर्गन्स, सभी सेंसरी ऑर्गन हेल्थी होना चाहिए. देन ओनली ही कैन एबल टू हियर और विजुअलाइज पल्पेशन, दर्शन, स्पर्शन, प्रश्न. योगी में परीक्षा करना है तो इंद्रिय पूरा अच्छा होना चाहिए, हेल्थी होना चाहिए, विदाउट एनी डिफॉर्मिटी नहीं होना चाहिए. सर्व इंद्रियम उपपन्न होना चाहिए, हेल्थी होना चाहिए. प्रकृतिज्ञन, who are acquainted with natural manifestation, प्रकृतिज्ञन होना चाहिए. मतलब एक व्यक्ति का प्रकृति के बारे में, नेचुरलिटी के बारे में, वो व्यक्ति कैसे, उसका फिजियोलॉजी के बारे में अच्छा वाला नॉलेज होने वाला व्यक्ति होना चाहिए, प्रकृतिज्ञन होना चाहिए. नेक्स्ट, प्रतिपदिज्ञन. प्रतिपदिज्ञा के बारे में चक्रपाणी ने कहा है, प्रतिपदिज्ञा यदि तथात्वे कर्तव्यज्ञाः, मतलब प्रॉपर टाइम में स्पॉन्टेनियसली डिसीजन लेने वाला व्यक्ति. उसी टाइम में ओके दिस पर्सन इज नॉट ट्रीटेबल, सो फॉर दिस पर्सन हैज टू admit, for this person or this yogi, this yogi is needed for surgical correction. That is spontaneous decision has to taken at the very time when the patient is examining. पेशेंट को एग्जामिन करने के टाइम में अपना उसी टाइम में उसको पता होना चाहिए कि ये शमन से ठीक करेगा, ये शोधन से ठीक करेगा, ये सर्जिकली उसको ठीक कर सकते हैं. तो ऐसे वाला स्पॉन्टेनियस डिसीजन लेने वाला डॉक्टर ही अच्छा वाला. देखो हमारा कर्तव्य, एक डॉक्टर, एक फिजिशियन का कर्तव्य सिर्फ ये नहीं है कि मेडिसिन देना. पेशेंट आता है तो उससे कहना है कि ये आयुर्वेद से ठीक नहीं होगा, इसमें मॉडर्न मेडिसिन देना है. और दिस स्टेज इज नॉट ट्रीटेबल by using Ayurvedic medicine for medication. You have to went for modern treatments. ऐसे बताने के लिए नॉलेज होना चाहिए. किसको नॉलेज होना चाहिए? अच्छा वाला डॉक्टर को. That is the spontaneous decision. That spontaneous decision किसी को ही हो सकते हैं, एक अच्छा वाला डॉक्टर को होना चाहिए. निसंशय केवल शरीरे, शरीर के बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए. वो नॉलेज निसंशय होना चाहिए, निसंशय, विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी डाउट दैट प्राणाविसार शिक्षक is should have
good knowledge regarding the proper body. Body के proper knowledge उसको होना चाहिए. Next, निसंशय शरीर अभिनिवृत्ति. संशय नहीं, without any doubt उसको शरीर अभिनिवृत्ति के बारे में, शरीर का फॉर्मेशन, अभिनिवृत्ति मतलब फॉर्मेशन, शरीर का फॉर्मेशन कैसे होता है, मतलब शुक्र शोणित संयोग से शरीर का निवृत्ति होता है, शरीर का फॉर्मेशन होता है, उसके बारे में निसंशय वाला, विदाउट एनी डाउट वाला नॉलेज एक अच्छा प्राणाभिसार शिक्षक को होना चाहिए. ऐसे वाला व्यक्ति को ही हम प्राणाभिसार शिक्षक. तो हियर टू टाइप ऑफ शिक्षक इज देयर. द फर्स्ट वन इज प्राणाभिसार शिक्षक. प्राणाभिसार शिक्षक अंधारो रोगाणाम, प्राणानाम एक विसारो अंधारो रोगाणाम, रोग को अंध करेगा, खत्म करेगा. इंद्रिय के बारे में नॉलेज होना चाहिए, आत्मा के बारे में नॉलेज होना चाहिए, चेतना के बारे में, हेतु के बारे में नॉलेज होना चाहिए, कुलीन होना चाहिए, पर्यवदात सुदु होना चाहिए, परिदृष्ट कर्मण होना चाहिए, दक्ष होना चाहिए, शुचि होना चाहिए, जितहस्तन होना चाहिए, जितात्मन होना चाहिए. नेक्स्ट, सर्व उपकरणवंत होना चाहिए, सर्व इंद्रिय उपपन्न होना चाहिए. नेक्स्ट, प्रकृतिज्ञन होना चाहिए, प्रतिपदिज्ञन होना चाहिए, केवल शरीर के बारे में निसंशय नॉलेज होना चाहिए, शरीर अभिनिवृत्ति के बारे में निसंशय नॉलेज होना चाहिए. तो ऐसे वाला डॉक्टर को हम क्या बोलता है, प्राणाभिसार शिक्षक बोलता है. देन निसंशय प्रकृति विकार, नेचर के बारे में, एक व्यक्ति का प्रकृति के बारे में, उस व्यक्ति का विकार, डिसीज, उसको अबनॉर्मलिटी हो गया, वहां भी उसके बारे में निसंशय वाला विदाउट एनी डाउट नॉलेज होना चाहिए. देन वेदर द डिजीज इज सुख साध्य है, कृत्र साध्य है, व्याप्ति है, प्रत्याख्यायम, प्रत्याख्यायम इज नथिंग बट अनुपक्रमम, दैट इज असाध्यम, प्रत्याख्याय व्याधि. कहाँ पढ़ा है, 10th चैप्टर महा चतुष्पाद में पढ़ा है. रोग समुत्थानम, रोग का समुत्थानम, एथियोलॉजी, रोगम कैसे उत्पन्न हो गया, निज है, आगंतु है, इसके बारे में, पूर्व रूप के बारे में, लिंगा के बारे में, दैट इज लक्षण के बारे में, वेदना, पेन, वेदर द पेन इज रुचा, रुक्, तोदम, हेदम, यदम, व्यासम, स्वावम, सादम, वो सभी के बारे में, उपशयम, ये सभी के बारे में नॉलेज होना चाहिए. And such pranavisara vikshaka should have another knowledge. Trivida Ayurveda Sutram, Trisutram, that is another name of Trisutra is Triskanda. Triskanda के बारे में knowledge होना चाहिए. That is Hedu, Lingam, Aushadha Jnanam, Swastadura Parayanam, Trisutram, Shastram, Punyam, Budeyam, Pidamaha. आपने पढ़ा है. So हेतु के बारे में, लिंग के बारे में, औषध के बारे में उसको knowledge होना चाहिए. त्रिविध औषध ग्रामम, देखो त्रिविध औषध ग्रामम स्थावर जंगम पार्थिव, कहाँ पढ़ा है, फर्स्ट चैप्टर चरक संहिता सूत्र का नाम दीर्घम जीविती अध्याय. त्रिविध औषध ग्राम में क्या क्या आता है, स्थावरम जंगमम पार्थिव. जस्ट लाइक त्रिविध औषध ग्राम, देयर इज चतुर्विध औषध ग्राम विच इज सेड इन सुश्रुत संहिता सूत्र स्थान फर्स्ट चैप्टर वेदोत्पत्ति अध्याय. वहां सस्वेदजम अंडजम जरायुजम, ऐसे एक बताया है, स्वेदजम, अंडजम, जरायुजम एंड उद्भिजम, ऐसे चतुर्विध औषध ग्राम बताया है. यहाँ त्रिविध औषध ग्राम क्या क्या है, स्थावरा जंगमा पार्थिव. अगेन देयर इज अनदर ओपिनियन, द त्रिविध औषध ग्राम इज देव विभाश्रयम, युक्ति विभाश्रयम एंड सत्वावजयम. देव विभाश्रयम, युक्ति विभाश्रयम एंड सत्वावजयम इस त्रिविध औषधम. कहाँ पढ़ा है, तिस्रैषणीय अध्याय चरक संहिता सूत्र स्थान 11th चैप्टर, देवोपाश्रयम, युक्ति विपाश्रयम, सत्वावजयम. सो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है, प्राणाभिसार विषय को क्या क्या गुण होना चाहिए, प्राणाभिसार विषय क्या क्या होना चाहिए, कुलीनन, जितहस्तन, जितात्मनन, परिदिष्ट कर्मणन, पर्यवदात सुदन, देन सर्व इंद्रिय उपपन्नन, सर्व इंद्रिय, सर्व उपकरणवंदन, देन प्रतिपत्तिज्ञन, प्रकृतिज्ञन, देन
केवल शरीर के बारे में नॉलेज होने वाला व्यक्ति। नेक्स्ट निसंशय शरीर अभिनिवृत्ति, शरीर का प्रोटेक्शन के बारे में विदाउट एनी डाउट उसको नॉलेज होना चाहिए। निसंशय प्रकृति विधि के बारे में नॉलेज, सुखसाध्यम कृत्रसाध्यम व्याप्यम अनुपक्रमम इसके बारे में नॉलेज, पूर्व रूप रूप लिंग उपशय इसके बारे में नॉलेज, त्रिविध औषध ग्राम के बारे में नॉलेज, दैट इज त्रिविध औषध ग्राम में वी कैन इंक्लूड स्थावर जंगम पार्थिव और दैव विभाषया युक्ति विभाषया एंड सत्व। Again, the same प्राणाभिसार भिक्षक should contain again some, उसको कुछ कुछ नॉलेज होना चाहिए। That knowledge, इतना चीज के बारे में नॉलेज होना चाहिए, इतना चीज है, सेम चीज you are already deal with और एंटायर चरक संहिता सूत्र स्थान, उसमें जो जो नंबर आया है वो सभी के बारे में एक नॉलेज ये प्राणाभिसार भिक्षक को होना ही चाहिए। देखो, he should be expert in 35 मूल फलम, that is 16 plus 19, 16 मूलम and 19 फलम, फल औषधि and मूलिनी औषधि चरक संहिता सूत्र स्थान फर्स्ट चैप्टर में ऑल टुगेदर 16 plus 19 35 मूल फल के बारे में नॉलेज होना चाहिए। चरक संहिता सूत्र स्थान फर्स्ट चैप्टर में मूल फल के बारे में कहा। सो प्राणाभिसार भिक्षक कंटेन knowledge regarding 35 मूल फल, चार स्नेहम चतुर्विध स्नेह, then 5 salt, अष्टमूत्रम, अष्टक्षीरम, शोधनार्थ वृक्षम, क्षीरी त्वक वृक्षम, शोधनार्थ वृक्षम कितना है 6 था, 3 त्वक, 3 क्षीरम, अर्कम अश्मंतम स्मुखी क्षीरम, कूदिका तिलवगम लोद्रम त्रिविध त्वक, so total 6 क्षीर त्वक वृक्षम शोधनार्थ वृक्षम। नेक्स्ट यवाहू प्रिपरेशन कितना था 28 यवाहू प्रिपरेशन, वो भी हमने पढ़ा था सेकंड चैप्टर अपामार्ग तंडुलीय अध्याय। नेक्स्ट 82 चूर्ण प्रदेह, 82 चूर्ण प्रदेह भी हमने पढ़ा है। विरेचन षड्विरेचन वो अपामार्ग आरग्योदय अध्याय में 82 चूर्ण प्रदेह। नेक्स्ट 600 विरेचन कल्प, षड्विरेचन शताश्वतीय अध्याय में टोटल 600 विरेचन के बारे में हमने पढ़ा है। उसी चैप्टर में 500 कषाय एंड 50 महाकषाय, दैट इज महाकषाय का दूसरा नाम दशयमानी, 50 महाकषाय के बारे में पढ़ा है, 500 कषाय के बारे में पढ़ा है, 6 विरेचन आश्रय के बारे में पढ़ा है, 600 विरेचन कल्प के बारे में पढ़ा है, 5 पंच कषाय योनि के बारे में पढ़ा है, 5 कषाय कल्पना के बारे में पढ़ा है। द सेम चैप्टर षड विरेचन शताश्वती अध्याय। नेक्स्ट षोडश कला, व्हाट इज षोडश कला, एग्जाम में पूछेगा, राइट अबाउट षोडश कला। षोडश कला इज नथिंग बट षोडशम 16, कला मीन्स गुणम, 16 गुण, 16 गुण, किसको 16 गुण है, चतुष्पाद का दूसरा नाम है चिकित्सा चतुष्पादम, पाद चतुष्टय का दूसरा नाम है षोडश कला। वही षोडशम 16 कला गुणम 16 फैक्टर बताया है। ये सेम षोडश कला और चतुष्पाद को सुश्रुत ने कर्म साधन हेतु भी बोलता है, दूसरा नाम है। अकॉर्डिंग टू सुश्रुता 34 युक्त सेनीय अध्याय, वहां षोडश कला के बारे में कहा है। सुश्रुतन सूत्र स्थानम 13 चैप्टर युक्त सेनीय अध्याय में षोडश कला बताया है। षोडश कला दैट इज चिकित्सा चतुष्पाद, चिकित्सा चतुष्पाद का दूसरा नाम वहां कर्म साधन हेतु बताया है। वहां पहला व्याधि एंड व्याधि उपसृष्टा, व्याधि व्याधि उपसृष्टा ऐसे ऑर्डर में बताया है, दैट इज भिक्षक योगी ऐसे ऑर्डर में बताया है। भिक्षक के बाद योगी बताया है, पर अष्टांग में ऑर्डर क्या है, भिक्षक द्रव्याणि उपस्ताद, अकॉर्डिंग टू भेला वो दूसरा ऑर्डर में बताया है। भिक्षक ने ही भेषज को इंपोर्टेंस दिया है, फर्स्ट भेड़ा ने भेषज चतुष्पाद में फर्स्ट प्रायोरिटी दिया है, भिक्षक को लास्ट प्रायोरिटी दिया है। इसी तरह षोडश कला भेषज में टोटल 16 फैक्टर, दैट इज भिक्षक द्रव्याणि उपस्थाता रोगी ईच कंटेन 4 फैक्टर, टोटल 16 फैक्टर होता है। नेक्स्ट 3 एषणा,
प्राणेषण, धनेषण, परलोकेषण, तीसरे क्षण ये अध्याय में बताया है, उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। वाद कला अकलीयम, वाद कला, वाद का गुणम, अकलम, वाद का दोषम, उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो दैट इज 12th चैप्टर के बारे में नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट 4 टाइप ऑफ स्नेह के बारे में नॉलेज होना चाहिए। उपनयन, उपनयन इज नथिंग बट विचारण स्नेह। तो कितना विचारण स्नेह बताया है? 13th चैप्टर स्नेहाध्याय 24 उपनयन। नेक्स्ट उपकल्पना, स्नेह कल्पना 64 स्नेह कल्पना बताया है, उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट सामान्यज व्याधि, सामान्यज व्याधि इज एक्सप्लेन्ड इन अष्टोदरी अध्याय 48 सामान्यज व्याधि बताया है, तो उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। 140 नानान्मज व्याधि इज एक्सप्लेन्ड महारोगाध्याय 140 80 80 that is 80 वाद व्याधि, 40 पित्त व्याधि, 20 कवच व्याधि। पर 10 दशा नानान्मज विकार के बारे में कौन से आचार्य ने बताया है? शारंगधर संहिता में बताया गया 10 रक्तज विकार। सो 140 नानान्मज विकार के बारे में नॉलेज होना चाहिए। षड उपक्रम के बारे में, षड उपक्रम that is लंघनादि उपक्रम, लंघनम, ब्रह्मणम, स्नेहनम, रूक्षणम, स्वेदनम, स्तंभनम, ऐसे 6 उपक्रम, षड लंघनादि उपक्रम के बारे में नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट 152 अग्र्य औषध के बारे में नॉलेज होना चाहिए। अग्र्य औषध के बारे में कौन से चैप्टर में बताया है? 25th चैप्टर यज्ञपुरुषी अध्याय में 152 अग्र्य औषध बताया है, उसके बारे में एक गुड डॉक्टर, एक प्राणाविसार भिक्षु को नॉलेज होना ही चाहिए। नेक्स्ट द सेम चैप्टर 25th चैप्टर में आसवा बताया है, नयन आसव योनि एंड 84 आसवा बताया है, नयन आसव योनि एंड 84 आसवा, उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट 27th चैप्टर अन्नपान विधि अध्याय में अन्नपान वर्ग बताया है, 12 अन्नपान वर्ग बताया है। अष्टांग हृदय में कैसे बताया है? 5 + 7, 5 द्रवम एंड 7 आहार वर्गम, टोटल 12 वर्ग बताया है। सो यहाँ 12 अन्नपान वर्ग ऑल टुगेदर इन चरक संहिता 27th चैप्टर में 12 अन्नपान वर्ग बताया। नेक्स्ट आहार परीक्षा विधि बताया है, आहार परीक्षा विधि, नयन आहार परीक्षा विधि बताया है, उसमें चरम, शरीरम, अवयवम, स्वभावम, धातु, क्रिया, लिंगम, प्रमाणम, संस्कारम, मात्रा, ये सभी है आहार परीक्षा विधि। को डीपली पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सिंपली आपको नयन आहार परीक्षा विधि, परीक्षा विधि, आहार परीक्षा विधि कितना है? नयन, ऐसे ही याद रहना है। उसमें क्या क्या आता है वो डीप में एंट्रेंस के लिए पढ़ने वाला व्यक्ति को याद होना चाहिए। जो लोग ऑल इंडिया एग्जामिनेशन, एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए जा रहा है, वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करता है, वो रैंक मिलने के लिए पढ़ता है, that person should have to learn about the Nayan Ahara Pariksha Vidhi which is told. Okay, this is all about Yoga, sorry, Prana Abhisara Vikshak Guna. This is all about Prana Abhisara Vikshak. Next is about Yoga Abhisara Vikshak. So we already mentioned we have two positions, Prana Abhisara, Yoga Abhisara. Prana Abhisara kill Yoga, Yoga Abhisara kill the person. Right? So who is Yoga Abhisara Vikshak? अदो विपरीतो, इसका ऑपोजिट है रोगाणाम अभिसारम, रोगाभिसार भिक्षक। वो क्या करेगा? अंधारह प्राणानाम, प्राण को अंधारह, प्राण को अंध करेगा। टेक अवे द लाइफ, टेक अवे द लाइफ, प्राण को अंध करेगा, नाश करेगा। वो कैसा है? भिक्षक, स्वप्न प्रतिच्छन्ना, स्वप्न प्रतिच्छन्न वाला व्यक्ति है, स्यूडो फिजिशियन जैसा है वो कैसा है? कंडकभूतो लोकस्य, लोकस्य कंडकभूतो प्रतिरूपकम, लोग को मतलब पीपल, पीपल्स ऑफ द कंट्री, लोगम, लोग में कंडका, एक कंडका जैसा है, कंडका मतलब तोन, तोन, तोन जैसा है।
ट्रिकिंग विद तोन जैसा है, हमेशा टॉर्चर करेगा। इसलिए तोन क्या करेगा, टॉर्चर करेगा। किसको टॉर्चर करेगा, लोग को। सो प्रतिरूप का कंडक, प्रतिरूप का कंडक जैसा है, लोग को, पीपुल को, जन को, एक कंडकम तोन जैसा। ऐसे वाला व्यक्ति क्या करेगा, वो अधर्मणो राज्ञां प्रमादाद चरंदी राष्ट्राणी, राष्ट्र में, कंट्री में चरंदी, ऐसे 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 मूव करेगा। मतलब ऐसे वाला योगाभिसार भिक्षुक बहुत सारे है इस राष्ट्र में। चरंदी मूव करता है, राष्ट्र में मूव करता है, मतलब राष्ट्र में हमको देखने को मिलता है, राष्ट्र में चरंदी मूव करता है। क्यों मूव करता है, इसका कारण क्या होगा, प्रमादा, प्रमादाद मतलब नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस के कारण है। क्यों नेग्लिजेंस, किसका नेग्लिजेंस, राज्ञा का, अधर्म वाला राज्ञा का, मतलब अधर्म है, धर्मम, धर्म में धर्म नहीं फॉलो करने वाला राज्ञा का नेग्लिजेंस के कारण, अधर्म वाला राज्ञा का, जो धर्म नहीं फॉलो करता है ऐसे वाला राजा का प्रमादा के कारण, नेग्लिजेंस के कारण वो सारे राष्ट्र में चरंदी, ऐसे चरंदी क्या करता है, मूव करता है। एंड लोग को टॉर्चर करता है, जस्ट लाइक एक कंडकम, कंडक जैसे, एक तोन जैसे। तो अगर आपको ये पूरा श्लोक नहीं आता है तो आपको कितना बैहट करना है, विपरीतो अदो विपरीतो रोगाणाम अभिसार हंदार प्राणानाम, प्राण को हंत करेगा। तो अदो विपरीतो, प्राणाभिसार विषय रोगाभिसार विषय से पूरा ऑपोजिट है, तो प्राण को हंत करेगा। विषक चत्म प्रतिच्छन्न, विषक चत्म प्रतिच्छन्न जैसा है, मतलब स्यूडो फिजिशियन का जैसा है, वो लोग को कंटक का प्रतिरूप जैसा है। तो तोड़ जैसा है। राजा, अधर्म वाला राजा का नेग्लिजेंस के कारण, नेग्लिजेंस के कारण वो राष्ट्र में चरंदी मूव करता है एंड सभी को अपना पास में ले जाता है, सभी व्यक्तियों को अपना नाक के, अपना माउथ के बल के, मतलब बातें करके अपने ओर ले जाता है एंड ट्रीटमेंट करता है। दैट इज रोगाभिसार भिक्षुक। So again, here are a lot of descriptions regarding identification of bad decisions are told, which is that is not that much important. You just have to look look up through slide. वो आपको पता चलेगा इसमें कैसे वाला व्यक्ति बैड डिसीजन है, ऐसे आपको पता चलेगा। जस्ट गो थ्रू दिस स्लाइड। तो इतना श्लोक इसमें से बाहर जाता है। नेक्स्ट दो तीन और श्लोक शायद पूछ सकते, कैसे पूछ सकता है कि जैसे एक्सप्लेन द वर्ड्स जैसे पूछ सकते। ओके, तो हम ऐसे पूछ सकते, वने शाकुंतिका द्विजान, ऐसे पूछ सकते, वने शाकुंतिका द्विजान एक्सप्लेन। सो पहले आपको पता होना चाहिए कि दिस श्लोक इज टेकन फ्रॉम द चैप्टर नंबर 29, दैट इज दशप्राणायाम अध्याय, वने शाकुंतिका द्विजान। What it is told, it is about, the slogan is about the description regarding pseudo-physician. Vane Shagundiga Dija. One means Shagundiga. Shagundiga means bad catcher. Bad catcher. Bad catcher means जो पक्षियों को पकड़ता है। तो वने शाकुंतिका द्विजान, तो द्विजान, द्विजान मतलब डॉक्टर। So that type of doctor is just like Vane Shakuntika Dijan. Vane Shakuntika Dijan means Shakuntika is bird catch, तो bird को पकड़ करता है। तो that type of pseudo physician is just like एक बैड कैचर। वो बैड कैचर क्या करेगा, गीतम समिवा संस्कृतिम, गीतम समिवा मतलब गीतम सम मतलब बैड। सो बेड को, बेड कैचर कैसे कैच करेगा, वो जैसे विजन वन में
वन में रहने वाला शाकुंतिका पेड़ कैचर गीतम सुको पेड़ को कैच करता है। जैसे एक विजन के जूडो डॉक्टर की क्या करेगा, शिक्षक स्वप्न प्रविश्य एवं वो कैसे वाला डॉक्टर से वो शिक्षक वो वाला शिक्षक स्वप्न प्रविश्य एवं स्वप्न जैसा है। स्वप्न मतलब शिक्षक स्वप्न स्वप्नाचारण स्यूडो फिजिशियन का रूप, हाँ रूप लेके याद वाला व्यक्ति को तर्क करके याद वाला व्यक्ति से बात करके उसका अपने ओर ले जाता है। जस्ट लाइक पकड़ता है, मतलब व्याधित वाला व्यक्ति को तर्क करके वो एक बैड कैचर जैसे कैसे बैड को कैच करता है, जैसे ऐसे वाला सूडो फिजिशियन पिशक स्वप्न का रूप प्रविश्यम प्रविश्य मतलब वो रूप पहन के यादित वाला व्यक्तियों से तर्क करके बात करके उसको पकड़ता है। तो शायद वने शाकुंत का दिशा एक्सप्लेन ऐसे पूछ सकता है। तो पहले आपको अधिकरणम, उसका अधिकरणम मतलब कौन सा कॉन्टेक्स्ट का श्लोक है वो पता होना चाहिए। अधिकरण तंत्र युक्ति, तो यहाँ तंत्र युक्ति अधिकरण में कौन से चैप्टर है, 29 चैप्टर का है। देन एक्सप्लेन करना है स्यूडो फिजिशियन है कैसे कैसे होना चाहिए। तो आपको योगाभिचार विषय के बारे में जो जो आपको आता है वो सभी लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट, श्रुत दृष्ट क्रियाकाल मात्मा ज्ञान बहिष्कृताः वर्जनीया ही ते मृत्यु चरंदो अनुचरा भुवि। देखो ऐसे भी पूछ सकते हैं, मृत्यु चरंदो अनुचरा भुवि एक्सप्लेन। मृत्यु का अनुचर जैसे मृत्यु का अनुचरण, मृत्यु के साथ हमेशा अनुचरण चरण करने वाला मूव करने वाला मतलब मृत्यु के साथ हमेशा यात्रा करने वाला एक व्यक्ति जैसा है, ऐसे वाला स्यूडो पोजिशन भूमि। भूमि मतलब अर्थ में, तो अर्थ में इस भूमि में इस भूमि में मृत्यु के साथ मूव करने वाला व्यक्ति है स्यूडो फिजिशियन। मतलब उस व्यक्ति के साथ हमेशा मृत्यु होगा। ऐसे वाला पेशेंट डॉक्टर के पास आप गया है तो यू विल डेफिनेटली डाई। ऐसे वाला व्यक्ति को इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, वर्जनीय वर्जन करना है, वर्जित करना है, त्याज्य करना है, बॉयकॉट करना है। वी हैव टू बॉयकॉट सच डॉक्टर्स हु इज ऑलवेज जस्ट लाइक ए मैसेंजर ऑफ डेथ। मृत्यु चरंदी, मृत्यु के साथ चरंदी, messenger of death. So we have to boycott that Virginia, such doctors who is only having such doctors कैसा है वैसे वाला डॉक्टर, ऐसे वाला डॉक्टर is only having knowledge, कैसे वाला knowledge, उसको सुधा टेक्सुअल नॉलेज नहीं है, दृष्टा प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, क्रियाकालम क्रिया कब करना है, क्रियाकाल के बारे में नॉलेज, सत्य क्रियाकाल के बारे में नॉलेज, और जब क्रिया काल जब क्रिया करना है, जब वमन करना है, जब विरेचन करना है, जब बस्ती करना है वो नॉलेज नहीं है। कितना मात्रा में देना है मेडिसिन, मात्रा के बारे में नॉलेज नहीं है। बहिष्कृतम ये सभी बहिष्कृत है, ये सभी नहीं है। ऐसे वाला व्यक्ति को आपको वर्जनीय करना है। तो दिस श्लोका इज आल्सो, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन स्टडीज श्लोका यू कैन लर्न। एंड कमिंग टू द नेक्स्ट श्लोका, वृत्तिहेतुभिर्विषक्मानपूर्णान् मूर्खविशारदान् वर्जेदाविदो विद्वान् सर्पास्ते पीतमारुदा। सर्पास्ते पीतमारुदा एक्सप्लेन ऐसे पूछेगा। सर्पास्ते पीतमारुदा, एक सर्पम एक स्नेक, डेंजरस स्नेक, वो स्नेक पीतमारुदम, मारुदम विंड को पीद करके, विंड को पी करके ले लिया मारुदम, विंड पी लिया तो क्या हो जाएगा, और डेंजरस हो जाएगा। तो
If the snake is satiated with wind, मार्द को पी के, मार्द खा के पी के डेंजरस हो गया जैसा है, तो एक ड्रेडफुल, एक पॉइजनस, मोस्ट पॉइजनस सर्प से इक्वेट किया है इसको, स्यूडो डॉक्टर को। ऐसे वाला विद्वान, विद्वान वाला व्यक्ति, वी आर विद्वान, हम विद्वान है, मतलब एक विद्वान वाला व्यक्ति वर्जित करना है। विद्वान वाला व्यक्ति मतलब विद्वान वाला आंदोलन, विद्वान वाला पेशेंट, पेशेंट विद्वान है तो ऐसे वाला व्यक्ति को क्या करना है, वर्जित करना है, बॉयकॉट करना है, अवॉइड करना है। क्योंकि ऐसे वाला डॉक्टर कैसा है, वृत्ति है तो फिर विषक्मान पूर्णान, वृत्ति हेतु के लिए, वृत्ति अपना जॉब के लिए, सिर्फ उसका मन में जॉब के बारे में, मतलब पैसा कमाना है। They are treat only their job as to accomplish, to earn money, not to treat the needy one or not to treat the patient for the purpose of to earn money. ऐसे चीज के लिए only for that purpose, फिशक जैसे, फिशक माना पूर्णा, फिशक जैसे एक्ट करने वाला मूर्ख विशारद वाला व्यक्ति, मूर्ख विशारद है, वो मूर्ख है, इडियट है, मूर्ख है। सो वर्स्ट, सो उसको हमको क्या करना है, वर्जित करना है, क्योंकि वो सर्प जैसा है। कैसे वाला सर्प, मारुत को पीने वाला सर्प जैसा है। नेक्स्ट इज लास्ट श्लोका, वो भी एक्सप्लेन द वर्सेस जैसे पूछ सकते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन पेपर दैट आई हैव कम अक्रॉस सच क्वेश्चंस इन विच एक्सप्लेन द वर्सेस। कोई भी एक चैप्टर का लास्ट वाला श्लोक दिया है, देन एक्सप्लेन ऐसे पूछता है 5 मार्क के लिए। But according to the new syllabus, I am sure that that type of question will be asked. Then also we have to study such questions also. If you are interested in sloka learning and interested to get more mark, ऐसा है तो ऐसे वाला श्लोक तैयार करना है, नहीं तो ऐसे वाला श्लोक को छोड़ सकते। ये तो शास्त्रविदो दक्षः शुचयः कर्म कोविदः जितहस्त जितात्मना देव्यो नित्यम कृतम नमः। सो हमें ऐसे वाला डॉक्टर को हमेशा नम करना है, नमः, नम करना है, रेस्पेक्ट करना है, हॉनर करना है, रेस्पेक्ट करना है। वी शुड गिव हॉनर टू, शुड हैव गिव हॉनर और रेस्पेक्ट सच डॉक्टर्स हु इज शास्त्रविदम, शास्त्र के बारे में प्रॉपर नॉलेज होने वाला व्यक्ति, वेल वर्स्ड इन शास्त्र, दक्षन, स्किल्ड वाला व्यक्ति, शुचि वाला व्यक्ति, बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल शुचि, कर्म कोविदन, अपना कर्म में कोविद, वेल वर्स्ड इन देयर कर्मा, प्रैक्टिकल अप्रोच, प्रैक्टिकल प्रैक्टिस, जितहस्तन, एक्सपर्ट हैंड, जितात्मन, who won over their atma, sensory organ, mind, तेभ्यो, ऐसे वाला व्यक्ति को नित्यम हमेशा कृतम नमः, नम कृतम मतलब रेस्पेक्ट करना है। That person only deserve honor or respect. You just, so we, the good person, or we, the layman or the common man or the adura or a व्यक्ति should have to give respect or honor to those persons only who is well versed in their science and their practical experience, and who is have expert hand, and who जीत गया है आत्मा को, who have conquered their आत्मा। That type of प्राणाभिसार भिक्षक is object of respect. Okay, that is श्लोकस्थान अर्थ संग्रहम। एग्जाम में जैसे एमसीक्यू में पूछे तो which is श्लोकस्थान अर्थ संग्रह। The chapter number is 29. Dasha pranayagana is
Slokasthana Artha Sangraham. And we are winding this chapter. Thank you. Thank you for the patient hearing. And you should have to learn what are the sloka that I have told. Okay. The rest of the sloka you can, it's depend. If you want, then you can. So once again, thank you.